environment is already it is claiming. So we need to do the recycling and upcycling, and I think that is the only solution to go ahead. Hello everyone. Today we have with us Mr. Swapnil Joshi, founder director of EcoRegain Solutions Private Limited. So first let me tell you what EcoRegain Solution is. It is the first Indian company that talks about or does sell product about the recycling and upcycling of household waste clothes. Thank you sir for being with us. We are delighted to have you today. Hello all viewers. So, sir, before starting to the technical questions, I would first like to ask you, what are your views on recycling and upcycling, and what do you think its impact on the environment? I think recycling and upcycling is the very what is the necessary nowadays, or I think it is very necessary for the upcoming future also, because I think every day the population is increasing. So already we have 137 crore population. If we consider the population of India, it is already 137 crore. So considering this, we are using various products, but what happens to these products when we use it and we throw it away? So I think recycling and upcycling is the very necessary step we have to take, and I think each and everybody has to do contribution into it. And I think that this is the upcoming era of recycling and upcycling. I think it is approaching, and as because of this corona, we already know that the environment has what is that, the existence of environment is already it is claiming. So we need to do the recycling and upcycling, and I think that is the only solution to go ahead in future. Yes, sir, very well said, because nowadays everybody is about recycling and upcycling. So, sir, my next question is again connected to it, which is, what is sustainability according to you? So sustainability is as Ecoregan, what we are doing is like old clothes recycling we are doing. But sustainability is not about what is it, considering the old clothes as a raw material and making the product. It also consists of the social impact. Like in our Ecoregan, we are employing to all the needy women and the people who are sustaining on very low income. So sustainability is the complete approach as a what is it, economical growth also, and it is approach towards environment also. So altogether, I think it is called, we can call it as a sustainability, where not it focus more on the product itself, selling of the product itself, but it also consists of the employment generation, the environment impact and everything. So altogether, according to me, it is we can call it as a sustainability. So, sir, I want to know that I saw you were into some company, you were working in a software company. So, what motivated you to come up with the idea of eco regain and all sustainability, recycling of old clothes? Correct. So I think as a education wise, I have completed engineering and MBA. Then 1 year I have worked as a project manager in software company. But then when I've seen मैंने जब देखा मतलब अब बाद में कि everybody is using clothes, मतलब जो भी clothes है तो हम use करते हैं, लेकिन उसके बाद I think there is no any proper solution is available. तो यूजुअली हम उसको कुछ मतलब एनजीओ को डोनेट करते हैं, और इन सम ऑफ द केसेस वी गिव इट टू एनी नीडी पर्सन. बट ये दोनों ऑप्शन से इट इज वो कंप्लीट साइकिल नहीं होती. तो व्हेन मतलब जब हमने ये सर्च किया था, तो वी कम टू नो दैट कि एनजीओ में जो भी क्लोथ्स जाते हैं तो वो टन क्वांटिटी में रहते हैं, मतलब यूजुअली इन टन्स में वो रहते हैं 2 टन 5 टन में. और जब भी उनके यहाँ पे अगर इफ यू कंसिडर कि लोग रहते हैं 40-50 या फिर कुछ ऑर्फेनेज में भी नहीं बच्चे रहते, तो उनको भी पॉसिबल नहीं रहता कि हर कोई क्लोथ को वापस से यूज करे. तो व्हाट दे आर डूइंग अगेन कुछ आगे पास हो जाता है, मतलब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम दैट पर्सन टू अनदर, और ये फाइनली ये लोकल लैंडफिल में जा रहे हैं पुराने क्लोथ जो भी है, मतलब हर एक सिटी की एक लैंडफिल है, एंड वी आर जस्ट पासिंग दिस क्लोथ टू लैंडफिल. तो जब हमने सर्च किया था, जब मैं सॉफ्टवेयर में था, हाँ, तो जब भी ये लोकल लैंडफिल में जाता है तो वहां पे मैंने देखा कि ये एक तो कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है.
और मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी जो करंट उनका सॉल्यूशन है कि पहले से जो वेस्ट रहता है दे पुट सॉइल एंड क्ले मटेरियल ऑन इट और उसके बाद हम वो नया वेस्ट उस पर पुट करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस अनऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट पुराने क्लोथ भी डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट कर देते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिकम्पोजिशन यूजुअली टू गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ मीथेन ट्रैप्स हीट 28 टाइम्स मोर व्हिच इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो इसकी वजह से आई कम टू नो कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पुराने क्लोथ का, बिकॉज एवरी पर्सन इज यूजिंग क्लोथ. तो इसको कुछ सोल्यूशन देना चाहिए. इसके हिसाब से मैंने मतलब फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर कंपनी. वो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते आई कम टू नो कि ये भी प्रॉब्लम है. तो मैंने सोचा था पहले कि हम एक कुछ अलग ऐसे स्टार्ट करते हैं एज अ सेकंड वेंचर, लेकिन देन कंप्लीटली आई गेट इनटू इट और मैं अभी सॉफ्टवेयर में इतना काम नहीं कर रहा हूँ. बट नाउ इकोरिगन आई कंप्लीटली हैंडलिंग. This is the overall journey about I have started and the reason behind it. That indeed is a beautiful journey, like your shift from engineering to MBA to becoming an entrepreneur, of that too of a out of the box idea, is really recommendable. So next I would like to ask you, what is sustainable fashion according to you? तो सस्टेनेबल फैशन में जो भी है, मतलब अभी कैसे रहता है कि पुराने क्लोथ जो है, मतलब पुराने क्लोथ सिर्फ हम बनाते हैं, लेकिन जो भी पहले से यूज हुआ प्रोडक्ट है या मटेरियल है, तो उसको हम कितना अच्छी तरीके से बना सके, अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सके. आई थिंक दैट इज ऑल फैशन. बिकॉज कैसे होता है कि जो भी टॉक अबाउट मोर अबाउट सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनेबिलिटी और ये सारी चीजें, लेकिन फाइनली जो ऑडियंस उसको परचेज करने वाला है या जो भी कोई आदमी उसको प्रोडक्ट देखने वाला है, तो इट शुड हाईलाइटेड. मतलब वो उसको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे पुराने से बनाया है या फिर ये किसी ने यूज किए थे प्रोडक्ट से बनाया है. तो दो यूज प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल, क्लोथ एज अ रॉ मटेरियल, तो जो भी कुछ है. तो आई विल शो यू फ्यू प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, लाइक दिस बैग व्हिच वी हैव. तो इसमें दिखाया जाए तो ये पूरा पॉकेट्स हमने डायरेक्टली इसको यूज किया है. तो नोबडी विल एवर थॉट ये पुराने इससे बनाया है. या फिर ये बैग फ्रॉम ओल्ड ट्राउजर. तो ये ओल्ड ट्राउजर है, इसको ये डिजाइनिंग किया है. तो आई थिंक दिस इज अ फैशन. फैशन मीन्स लाइक दिस. लोगों के दिमाग में वो नहीं आएगा कि अरे ये पुराने क्लोथ से बना है, पर ये जैसे कुर्ती से बना है, पुरानी कुर्ती से. फ्रॉम दैट कुर्ती वी हैव ड्राफ्टेड. तो ये कोई भी आदमी यूज कर सकता है. दिस इज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ सस्टेनेबल फैशन. वेरी स्मॉल बैग है, तो इसको हमने डिजाइनिंग किया है प्रिंट ऑफ डेनिम से. और ये भी है कॉम्बिनेशन ऑफ कुर्ती एंड बैग. These products are really very beautiful, sir. बिल्कुल पता नहीं चल रहा, it's so real. So I think according to me this is a fashion. Like fashion ये वर्ड है, लेकिन according to me वो कितना अच्छा आप प्रोडक्ट बना सकते हैं. अगर वो पुराने से भी है तो it should get highlight और वो अच्छा ही दिखना चाहिए. I think according to me this is a sustainable fashion. Everybody is ready for it. It's deliver good product. So my next question is, now sustainability, like we all understand कि ये it is a part of life, it is the need of the hour. But back then, like 2-3 years back, when you started your firm, I want to know कि how much support did you get from your people around? Because I know for entrepreneurs it is not easy to get family support इतनी आसानी से. उसमें पहले तो मैं मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, तो एज यूजुअल कोई भी मेरी जर्नी अगर देखी जाए तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में आई स्टार्टेड माय करियर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. तो बहुत अच्छे कंपनी में फिर मैं जा सकता था अच्छी पोजीशन. तो सडनली एक तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब छोड़ा एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन सॉफ्टवेयर कंपनी. तो वो पहले वालों को लगा कह रहे कि ही हैज डन समथिंग एल्स, कि खुद का बिजनेस चालू करना एक डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट ही रहता है हमेशा. एंड उसके बाद एक साल में आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी व्हिच इज इनटू ओल्ड क्लोथ्स. तो मेरा एजुकेशन और ओल्ड क्लोथ्स का कहीं पे रिलेशन नहीं था. तो वो भी एक इट वाज समथिंग डिफरेंट. लोगों को मतलब घर वालों को तो लगा रहे क्या कचरा उठा रहा है लड़का. तो दैट टाइप ऑफ अप्रोच वाज देयर अर्लियर. बट आई वाज वेरी श्योर कि व्हाट आई वांट टू डू. मतलब मुझे पता था कि पुराने क्लोथ या जो भी कुछ है, आई हैव टू कंसीडर इट एज अ रॉ मटेरियल एंड आई शुड डिलीवर द बेस्ट प्रोडक्ट. मतलब जो भी उससे अच्छा आर्टिस्टिक जो बना सकते हैं वही हमें बनाना. So now I think in these 2-3 years of journey, people actually now they come
टू नो व्हाट आई वांट टू डू, कि जो भी कुछ है तो उनको कुछ समझ में आया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, या अभी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर्स आल्सो, फ्रॉम फैमिली रिलेटिव पीपल आल्सो। तो इसकी वजह से नाउ दे ट्रस्ट ऑन मी, आई थिंक फाइनली, कि जो भी कुछ है अच्छा है। And we are actually from other views, from all people we have received very good response. Nobody has ever come to करे पुराने से क्यों बना रहे, तो ऐसा अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस मुझे आया नहीं। इनिशियली थोड़ा डाउट था, मतलब वो होना ही चाहिए था, क्योंकि एक तो बिजनेस नया है और पुराने क्लोथ में यूजुअली कोई टेक्निकल आदमी सिखा नहीं सकता। लेकिन देन आई थिंक नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी द वे वी आर गोइंग, एंड आई थिंक इन न्यूअर फ्यूचर डेफिनेटली more and more people will contribute into this. Okay. Yes, sir. I have seen your products like first-handedly when I had come to your shop 2 years back, and those products were really amazing ones. Even I had tried a dress, and it was really very beautiful. So the journey indeed is very beautiful. I have seen that. And now, sir, I would like to ask you that how do we say this? How do you handle, like, it's very tough for a business to survive, and Right. coming up with a startup, that to a sustainable startup, how tough it was, or how has the journey been? So I think when I have started, I completely मैंने मुझे पता था कि the patience is very important in this type of business, because ऐसा तो मतलब हो नहीं सकता कि when आपने आज चालू किया and tomorrow you will become profitable immediately. तो वो तो I think patience is the very important thing. We have to मतलब पहले दिन से हमें ये पता होना चाहिए कि एक 2 साल तो उसमें people should get aware about कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एटलीस्ट एज अ प्रोडक्ट वाइज ऑल्सो हमें भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि क्या हम बनाना चाहते हैं या क्या हम बना सकते हैं। तो आई थिंक ये मतलब जर्नी तो वैसा था, लेकिन नाउ की वजह से नाउ मोर एंड मोर पीपल आर अप्रोचिंग मी, so it's a good journey now it is going on. Would you like to highlight some challenges that you faced initially? चैलेंजेस तो इसमें यही थे कि एक तो मतलब एक तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब पुराने क्लोथ से यूजुअली घर पे तो बहुत सारी लेडीज इंडिया में ये सारे प्रोडक्ट इनके हिसाब से बनाते हैं, एंड आई थिंक इट्स द लीगेसी ऑफ आवर इंडियन कल्चर की जहाँ पे पुराने क्लोथ कहाँ कहीं बाहर नहीं जाता जाते थे पहले, बट नाउ इन दिस आई थिंक लास्ट 10 years everybody is purchasing clothes, purchasing power सबकी हाई है। लेकिन चैलेंजेस देखा जाए तो पहले था कि पुराने क्लोथ, मतलब जो भी क्लोथ आ रहे हैं उसका सेग्रीगेशन कैसे होना चाहिए। सेग्रीगेशन होने के बाद सेकंड चैलेंज वो कि उससे क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, और हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने से कि वो मतलब ओल्ड नहीं दिखने चाहिए, इट शुड लुक न्यू, दो रॉ मटेरियल ओल्ड। तो वो चैलेंज था, और एक तो हमने पूरा हाउस होल्ड वेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया है, तो ये नहीं कि हमारे पास फ्रेश मटेरियल आने वाला है। तो जैसे हमने पहले चालू किया तो कुछ बैग्स हमने बनाए कि जिसके डिजाइन हमें उस टाइम अच्छे लगे, नाउ की कंपनी की इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम। तो ये एक जर्नी थी, और चैलेंजेस देखा जाए तो पहले यही था कि सेग्रीगेशन पुराने क्लोथ का क्या एग्जैक्ट हो सकता है। ऑलमोस्ट वन ईयर वी हैव स्पेंट ऑन इट कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं उससे। और अगर लोगों का देखा जाए तो आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ वी हैव रिसीव वेरी गुड रिस्पॉन्स। जैसे किसी ने आके हमें स्टोर में या ऑफिस में कभी ऐसे नहीं किया कि पुराने से बना रहे तो हम नहीं प्रोडक्ट लेंगे, तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स हमें आया नहीं। पीपल आर मतलब हमारी सोच में ऐसा था, मतलब पहले हमने चालू किया था तो वी हैव थॉट कि लोगों को ऐसे लगा कि पुराने से प्रोडक्ट है तो मैं नए जाके बैग ले सकता हूँ, लेकिन फॉर गॉड ग्रेस कि हमें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं जहाँ पे लोगों ने डाउट किया है कि अरे ये पुराने से तो आई विल नॉट परचेज इट। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई थिंक करंट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन पीपल आर चेंजिंग देयर माइंड, इन्वायरमेंट की तरफ उनकी ज्यादा सोच जा रही है। तो चैलेंजेस वाइज यही है कि पहले प्रोडक्ट क्या बनाने चाहते थे, सेग्रीगेशन क्या रॉ मटेरियल आने वाला है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल कोई फिक्स नहीं रहता कि यही आज आने वाला है। डिपेंड जैसे लोग आपके स्टोर पे क्लोथ देते हैं तो वो हम कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं डिपेंड ऑन उसका टेक्सचर जो रहता है, क्वालिटी जो रहती है। तो पहले 1 साल तो वो चैलेंज था कि क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और उसके बाद आई थिंक अवेयरनेस हमें लाना था। वो चैलेंजिंग ये था कि आप जो भी कुछ करें पुराने क्लोथ का, एक तो हमारे पास
पुराने क्लोथ की इतनी सोच, मतलब हम इतना अवेयर नहीं उसके वेस्ट के बारे में, बिकॉज वी यूजुअली मोर टॉक अबाउट प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट। पुराने क्लोथ का जब हमने सर्च किया तब हमें पता चला कि ये लैंडफिल पे कितना जाता है। मतलब आई थिंक एक पीडब्ल्यूसी का रिपोर्ट है कि जिसके हिसाब से 1.6 बिलियन क्लोथ इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी कार्बन इमिशन के लिए। सो ये इन नेक्स्ट 10 years दिस विल बिकम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और ये अभी लोगों ने समझना चाहिए कि वी हैव टू रिसाइकल एंड अपसाइकलिंग द ओनली सॉल्यूशन। तो ये अगर हमने अभी से चालू किया तो हमें कहीं पे स्पेस मिलेगी अर्थ पे, नहीं तो लैंडफिल भी खत्म हो जाएंगे एंड देयर विल नॉट बी स्पेस रिमेन टू थ्रो अवे आवर वेस्ट। तो चैलेंजेस वाइज आई थिंक दिस इज द वे कि क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, लोगों को अच्छे लगने चाहिए जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और उन्होंने लेनी चाहिए। आई थिंक दैट देन ओनली आवर ब्रांड विल बी सस्टेन। आई थिंक दैट इज द मेन challenge we have faced, but not we have that is real a big shock to hear that all the landfills are getting formed, and आने वाले 10 साल में we won't even have place to live. Forget about enjoying and stuff. So sir, I would like to ask you that what is something you wish people know about sustainable fashion? Because if you ask me, even I wasn't aware much of sustainable fashion until I had come to your shop. So what do you think that we should have known as an audience? So what I will do, this is a report which we have, I think I'll share that with you. If we are going to use 1 kg of recycled clothes, old clothes again, like recycling and by upcycling, 3.6 kg of CO2 emission we can able to reduce. Then 0.3 kg of fertilizer use, 0.2 kg of pesticide use, and 6,000 liter of water consumption on an average. तो 1 kg क्लोथ भी हम रीयूज या अपसाइकल करेंगे उसको, तो इतना मतलब दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वी कैन एबल टू प्रोड्यूस। तो जस्ट इमेजिन हर कोई इंडियन एक मतलब सिटीजन ने ये किया तो हाउ मच वी आर गोइंग टू सेव एनवायरमेंट। तो रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लोगों ने समझना चाहिए कि आपके घर में जो पुराने क्लोथ है दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। क्योंकि जो मैंने कहा था कि ये सारे क्लोथ लैंडफिल पे जाते हैं where they get decomposed, and for this decomposition the methane and carbon dioxide get produced, which is causing global warming. तो मैं आई थिंक मिट्टी के रंग प्लेटफॉर्म से यही लोगों को बोलना चाहता हूँ कि old clothes are also contributing in global warming, so recycling and upcycling is the only solution. So in whatever way, at least reuse it again. If not possible, we are there, we will take your old clothes. और हम कैसे करते तो आई विल जस्ट टेल यू कि हम 10 रुपीज पर केजी से वैल्यूएशन करते पुराने क्लोथ का जो भी आपके पास क्लोथ रहते थे, एंड इन एक्सचेंज व्हाट एवर प्रोडक्ट्स वी हैव ऑलरेडी मेड आप वो ले सकते हैं। तो इफ फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 20 kg ओल्ड क्लोथ है तो 200 विल बी द वैल्यू, एंड इफ आवर प्रोडक्ट प्राइस इज फॉर 400 then 200 will get deduct from that. So in this way we are completing the cycle. तो यही लोगों ने आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो ये ओल्ड क्लोथ वेस्ट प्रॉब्लम विल बिकम मोर सीरियस। अगर अभी के पॉपुलेशन के हिसाब से हमने कंसिडर किया तो 137 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया के, हर किसी के पास सेम क्लोथ भी हमने कंसिडर किए, तो इतना ह्यूज वेस्ट अभी है हमारे इंडिया। तो वेरी सून आई थिंक और एक रिपोर्ट के हिसाब से विल नीड अ सेपरेट कॉन्टिनेंट टू पुट वेस्ट। तो एक तो मतलब जो क्लोथ हम परचेस करते हैं वो कम परचेस करें, तो डोंट परचेस मोर एंड मोर क्लोथ की आज पार्टी के लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट। और सेकंड थिंग हमने मतलब क्लोथ को अटैच किया है हमारे लाइफस्टाइल से। अगर एक आदमी कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट टुडे ऑन मंडे एंड टुडे ऑल्सो हम ये वेयर करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि गरीब आदमी को इसके पास क्लोथ नहीं है क्या। तो ये थॉट निकाल देनी चाहिए कि वी हैव टू रीयूज द क्लोथ। बार बार परचेस हम जो कर रहे हैं उसको हम कहीं पे कम करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो भी हमने यूज किया है, नॉट ओनली क्लोथ बट जो भी कुछ है प्लास्टिक वेस्ट, बाकी जो वेस्ट है, ई वेस्ट, तो उसको हमने रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग भी करना चाहिए। तो हमारे वेस्ट का आगे क्या होता है ये भी कहीं पे हमने सोचना चाहिए कि एटलीस्ट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसका आगे क्या होगा, बिकॉज इन्वायरमेंट और अर्थ तो एक ही है, तो बार बार कोई अर्थ नहीं बनेगी वेस्ट पुट करने की।
So I think this is the only what we can say. I want to tell all the audience कि ये इसी हिसाब से you have to think right now because upcoming era बहुत complex है and already the problem has started because of the environmental thing. So, sir, regarding the way you said it just that we should buy less of clothes, it reminded me like I, as a citizen, would say that every week it's like shopping to karni hi hai. Like you, just as you mentioned about going to a party, you need to wear new clothes. That is what the mindset we have. Do you think that somewhere down the line, मतलब आने वाले 10 years में, will that mentality somewhat change? Like my generation doesn't bother at all because we have unlimited purchasing power, unlimited fashion brands, unlimited clothing, and fast fashion का तो culture ही it's going all around. Correct. So I think मतलब जो भी तो पहले तो ये हम कोई भी शॉप में अभी जा रहे हैं परचेज करने के लिए तो हमने पहले ये सोचना चाहिए कि अरे ये मैं अभी ले रहा हूँ इसका मैं आगे क्या करने वाला हूँ बिकॉज इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम परचेसिंग एनी शर्ट राइट नाउ तो दो एटलीस्ट 1 ईयर के बाद मैं इसका क्या करूँगा तो ये सोच जब हम चालू करेंगे मोर एंड मोर इन आवर थॉट तो उसका ही हमें मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये जब बदलाव चालू होगा लोगों के दिमाग में तभी जाके वो मतलब लेना चालू करेंगे जो भी कुछ लेंगे वो और ये कहाँ जा रहा है मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 साल के बाद हम तो ये तो सोचते कि इसको हम क्या डिस्पोज कैसे करेंगे तो ये हर चीज में हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मैं जो भी कुछ अभी लिखता हूँ आगे जाके क्या होने वाला है और ये भी सोचना चाहिए कि अगर स्पेस कम हो गई हमारी मतलब जो भी तो हमने यही सोचना चाहिए कि हम जो भी अभी ले रहे हैं तो उसका आगे जाके क्या होने वाला है क्योंकि जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक ही रूम है और रूम में हम सब ले रहे हैं लेकिन बाहर कहाँ डालेंगे क्योंकि रूम एक ही है इट इज सिमिलर टू अर्थ कि हम अर्थ पे तो सब कुछ ले रहे हैं लेकिन अर्थ एक ही है ना और उसकी स्पेस तो हमने ऑलरेडी इनक्रॉच की है हम रह भी रहे वहाँ पे सारी चीजें है तो वेर वी थ्रो अवे अवर जो भी वेस्ट हम बना रहे हैं उसको तो यही हमने सोचना चाहिए कि जो भी तो ये अभी मैं नहीं बोल सकती इमीडिएटली दिस इज गोइंग टू हैपन बट एटलीस्ट एक हर साल में एक रिसाइकल चीज हम यूज करेंगे और जो भी परचेस कर रहे हैं अगर हम 10 क्लोथ्स परचेस करें तो वो 8 5 6 7 से नीचे जैसे हम आएंगे तो आई थिंक इन दिस कमिंग ईयर एवरीबॉडी विल गेट मोर अवेयर अबाउट इट और ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई फील वेरी पॉजिटिव ये होगा एंड इन इंडिया में भी ये होगा बिकॉज नाउ वी हैव रिसीव वेरी गुड रिस्पॉन्स की जहाँ पे हर मंथ लोग आते हैं हमें पुराने क्लोथ देने के लिए एंड दे आर परचेसिंग आवर प्रोडक्ट ऑल्सो So this trend has already started. People are getting more aware about the environment. और definitely मतलब कम purchasing चालू होगा हमारे यहाँ पे. Yes, sir. So the basic thing sums up to that हमें purchase less करना है because we don't stop buying. Simple as that. Yes. So, Correct. I hope with your words, people get aware of it. At least I don't know about people. At least I get aware of it and I stop buying. I restrict myself from buying. So, sir, I would like to ask you that what else do you want to tell to the audience about Eco Regain? What do you want that people should know about Eco Regain? So I think according to Eco Regain, it is like a brand. मतलब हम उसको brand बोल रहे हैं. Though we are using the raw material as a old cloth, but हम brand देखिए जहाँ पे हम product equivalent to नए product से बना रहे हैं. And second thing, I can proudly say कि all these products are made by our Indian women. जहाँ पे हमने हमारा खुद का प्रोडक्शन सेंटर है नीडी वुमेन के लिए और वो वुमेन के ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक सोच है कि कोई बहुत बड़ा डिजाइनर ही अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है. तो आई कैन प्राउडली से कि अगर बैग आपने देखी ये जो करता है तो ये हमारे नीडी वुमेन ने बनाई है या आई कैन से प्राउडली कि क्रिएटिव वुमेन ने बनाई है रादर देन नीडी वुमेन. तो वैसा कुछ नहीं कि कोई क्रिएटिविटी विल अटैच की फैशन डिजाइनर ही बनाती वैसा नहीं है कि हर कोई के पास आई थिंक वही क्रिएटिविटी रहती है. And we are through Eco Regain we are giving a platform to
all these needy women की वो सारे ये products बनाए. And second thing, through this platform, we are Pune based right now. So if anybody is watching this from Pune, so we have our own store in Karvenagar where people can come and exchange their photos. Okay. So now the people who are watching it from Pune, so we are a Pune based company right now and we are expanding in other cities. तो जो भी पुराने मतलब पुराने क्लोथ थे जो पुणे पे थे उनके पास, तो दे कैन विजिट आवर स्टोर इन करवे नगर, जहाँ पे वो पुराने क्लोथ ये प्रोडक्ट के मतलब पुराने क्लोथ देके ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं. एंड इन दिस वे ओनली द साइकिल विल बिकम कंप्लीट. जब यूजुअली हम तो सिर्फ क्लोथ डोनेशन का सोचते हैं, लेकिन उससे कुछ बनाया हुआ यूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज वंस गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट, as I said, 3.6 kg of CO2 and methane emission we can able to reduce. Water consumption बहुत reduce हो जाएगा. Different fertilizer use भी बहुत reduce हो सकता है. So this is the I think very important thing I want to share. And second thing, this is all made in India product. क्योंकि हर एक product पे हमने ये लगाया है proudly. तो बहुत पहले से लगाया है कि this is a Indian brand कि जो पुराने clothes पे ही काम कर रहा है. So through this product, I hope people will contribute in environment saving by recycling and upcycling their old clothes. So this clearly shows that EcoRegain follows their principle very well of reduce, reuse and recycle. That is exactly what the message you want to give to the audience. Yes, yes, definitely. And I think right now it's a perfect time कि हमने recycling, upcycling के बारे में सोचना चाहिए. Because अभी 10 साल पहले हमने इतना नहीं सोचा था. And now we know कि because of corona बहुत सारी जगह पे क्लीन वेदर हो गया है या बहुत अच्छे क्लीन हो रही है. तो ये भी एक है कि वेस्ट जनरेशन भी हम उतना ही कर रहे हैं, तो उसको भी कहीं पे कंट्रोल होना चाहिए, करना चाहिए. तो ये जब ही होगा जब हम पहले से बना यूज करना चालू करेंगे. तो दिस इज द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव ऑल पीपल की रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग आप प्रोडक्ट यूज करो. और हम जैसे ब्रांड लाइक अदर ब्रांड में भी वो होंगे जहाँ पे वो अच्छा बनाना चाहते हैं पुराने ही चीजों से. तो people should come forward, they should contribute. In this way only the entire ecosystem will get developed. And I think this is the journey about the sustainability. I think each and every person should contribute in this, live the sustainable life. That is my. Yes, sir. Just like Barack Obama said, together we can. So yes, we can survive this also. And indeed, we will be doing that. We will survive this. Thank you so much, sir, for sharing such enlightenment thoughts on sustainability, sustainable fashion, and telling us so much about EcoRegain. And the thought that you employ women is really something which is the need of the hour again, I would say, because usually the women of the lower class, they don't get much employment because of no education or family support, and you are providing them with that also is really commendable. And through this way, I just want to tell you that each and every woman is already empowered according to me. So we are just giving them platforms to showcase their skills, showcase their creativity. I personally I don't like to use woman empowerment word, but personally I feel that all women are already creative. They are already empowered. So we through EcoRegain we are just giving them platform, and then the creativity just now you have seen. So लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत रहती है most of the cases. जितना भी हम प्लेटफॉर्म को दे सके, आई थिंक दैट इज द नेसेसरी राइट. तो यही हमारी सोच है. एंड आई थिंक होपफुली विल मोर एंड मोर वुमेन विल गेट एम्प्लॉयड इन EcoRegain. I hope that, sir, that EcoRegain becomes one of the top brands in the world, not just in India, in the world. I hope for that. And yes, when I come back to Pune, I'm sure, I'm definite about it that I'm again visiting the shop again. It will be really good to come and see the new products that have come. And thank you so much, sir, for giving us time and sharing your views with us. Thank you so much. Thank you.